Okay. So from few days we have been talking about pronoun and its kind, and we have already covered many of the kind of our pronouns. So today that we are going to cover, that is reflexive pronoun and empathetic pronoun. So we'll talk about the difference between reflexive and empathetic pronoun. Many times in your academic session, when you talk about reflexive and empathetic pronoun, you feel that it's very difficult to understand both of them, but today you will feel it that it's an easy thing, and none other than these two is easier than any other. सो यहाँ पर आप ये चीज देखने पाओगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन बोलने में और देखने में जितना कठिन तुम्हें लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान इसे समझना और इन दोनों को पहचानना है। बस दिमाग में ये लग जाती है कि दोनों में ही एक ही चीज होता है। सपोज दैट अगर मैं बोल रहा हूँ हर सेल्फ, तो ये दोनों में ही आएंगे, आपके रिफ्लेक्सिव में भी आएंगे और एम्पैथेटिक में भी आएंगे। तो फिर ऐसे कैसे, अगर हमें ये बोल दिया जाए कि आप ये चीज बोलो कि यहाँ जो हर सेल्फ का इस्तेमाल किया गया वो रिफ्लेक्सिव है या एम्पैथेटिक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू recognize or to understand whether the word herself is used is reflexive pronoun or empathetic pronoun. So in according to understand all those things, we have to cover one by one, and then we will comparison between both of them. And I know at the end of our class you will learn and you can easily differentiate between reflexive and empathetic pronoun. You will never be confused from today onwards. Hope, keep the finger crossed. Okay, so let's study the reflexive pronoun. Start our class. We'll start with the reflexive pronoun. And what's it talk about? If we are talking about the definition, I always what I do, I write the definition as simple as I can, because you can get definition in a very hard words and the long one also. But what I teach here, is a simple definition so that every people every one of you can understand, because here not only one category of student are studying, many kind of or many categories. Some understand easily, some don't understand easily or something like that. So I just make it equal for everybody so that you can learn easily. So this is my motive is also so that you learn easily. So what the definition says, reflexive pronoun, it is a pronoun, okay, and it reflects the action towards the subject. That means a word that we are talking about, that is a pronoun. And how we can say that is a reflexive pronoun? When that word reflects the action towards the subject. Okay, तो अगर हम इसे हिंदी में बोलना चाहे या समझाना चाहे तो हम क्या बोलेंगे कि जब कभी भी कोई भी प्रोनाउन वर्ड है ना, कोई भी प्रोनाउन वर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्सिव आप समझ जाना, इसी से निकल करके आता है, क्या से, रिफ्लेक्ट से निकल करके आता है। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे आप तो क्या बोलेंगे उसको, जैसे आप किसी में लाइट ये करते हो, टॉर्च मारते हो तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट रेज हो गया, वो सब हो गया। तो यहाँ भी आपका कुछ इसी प्रकार का वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि आपके एक्शन को वो क्या करता है, सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हम बेहतर तरीके से और समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अच्छे से एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हुए हैं। तो सी हर्ट, फर्स्ट है आपका सी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, सी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर आप देखने पाओगे कि सी को सब्जेक्ट जो है अपने आप को उन्होंने क्या किया, हर्ट किया है। ठीक है, अपने आप को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया है।
कैसे, ठीक है, सी हर्ट हर सेल्फ। तो ये जो आपका जो एक्शन है हर्ट वाला, वो डायरेक्ट किसको ये कर रहा है, सब्जेक्ट को, ठीक है, डायरेक्ट वो सब्जेक्ट को मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हर्ट किनको किया, सी को। और अगर हम हर को भी देखेंगे तो हर सेल्फ भी उन्होंने खुद को या स्वयं को क्या किया, हर्ट किया है, इस तरीके से। नेक्स्ट भी अगर देखोगे तो यू हैव इन्वेंटेड दिस मशीन योर सेल्फ। दैट मीन्स यहाँ पर जो है योर सेल्फ का जो इस्तेमाल हमने किया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके यू को। दैट मीन्स आपने स्वयं ही, है ना, आपने स्वयं ही, दैट मीन्स आपने यू और योर सेल्फ स्वयं ने, है ना, तो ये दोनों तो एक ही है। दैट मीन्स यू इक्वल टू योर सेल्फ आप कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इनको, ये इनको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यू कैन गो विथ इट। तो यू हैव इन्वेंटेड दिस मशीन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर एक्शन हमारा क्या है, एक्शन है हमारा इन्वेंटेड। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आई सेल, है ना, आई सेल डू इट माई सेल्फ, वापस यहाँ पर है। तो माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करा, आपके आई को, ठीक है। ये चीज आपको जनरली हम जब सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई सेल डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो है माई सेल्फ आई डू इट, आई सेल डू इट, हमें जो है यहाँ पर इसको बोलने की जरूरत भी नहीं है। और ये ज्यादातर हम जो एम्फैथेटिक में नहीं यूज करते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो है हम उस चीज को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। खैर उस चीज को हम लोग बोलेंगे नहीं, अगर यूज हो रहा है तो चलो यूज करते हैं। आई सेल डू इट माई सेल्फ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आई सेल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ माई सेल्फ जो है आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने स्वयं ही ये किया, मैंने खुद से ये किया, मैं भी मैं ही हूँ और खुद से भी मैं ही हूँ। तो ओनली वन पर्सन, तो दो वर्ड की क्या जरूरत है हमें। तो जब इस प्रकार का वर्ड इस्तेमाल हो तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। आई मेड अ केक, क्या बोलेगा, आई मेड ए केक फॉर माई सेल्फ, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा कि मतलब मैंने ही बनाया और खुद के लिए ही बनाया, ठीक है, काइंड ऑफ इस तरीके से भी। आई मेड अ केक फॉर माई सेल्फ, इस तरीके से भी। ही सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया खुद से, है ना। पिक्चर आप देख सकते हैं, इधर इस साइड हमने पिक्चर दिया, उन्होंने अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद ही क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ज्यादातर हिमसेल्फ, ये सब जो है हमारा रेड वाला, ये सब चीज क्या हो रहा है आपका, कि आपके सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है क्या, रिफ्लेक्सिव क्या करता है, वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और वो भी कौन सा, अपने ये क्या बोल रहा है, एक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये डू हो गया, सॉल्व हो गया, यहाँ पर ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है और ये वाला एक्शन है। तो ये एक्शन क्या कर रहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट की तरफ वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वेंटेड योर सेल्फ, सॉल्व्ड हिमसेल्फ, डू इट योर सेल्फ, एंड हर्ट हर सेल्फ। हर सेल्फ कौन, सी, योर सेल्फ कौन, यू, माई सेल्फ कौन, आई, हिमसेल्फ कौन, ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्फैथेटिक प्रोनाउन जो है वर्ड आता है आपका एम्फेसिस से। एम्फेसिस का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना, या तो फिर थोड़ा सा किसी चीज के बारे में थोड़ा बेहतर बोलना, ठीक है, ठीक है, बेहतर एम्फसाइज करना होता है ना, बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो। तो चीजों को देखो बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो, तो डोंट एम्फसाइज, है ना। या कोई चीजों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा क्लियर से बोलना, है ना, तो बोलेंगे थोड़ा एम्फसाइज करो क्या कहना चाहते हो। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो एम्फैथेटिक प्रोनाउन वही होता है जो एक्स्ट्रा प्रदान करता है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से
अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो क्या है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, which is used for emphasis is called empathetic pronoun. emphasis मतलब emphasize करना, ज्यादा बोलना, एक्स्ट्रा देना उसके बारे में, वो ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल में है आपका, आई माई सेल्फ इज इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई माई सेल्फ इज इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि आई के बाद क्या है, माई सेल्फ है, इज इनफ, दैट मीन्स मैं खुद इस प्रॉब्लम को या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पर्याप्त हूँ, मुझे दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ भी अगर आप इसमें भी देखोगे तो वहाँ भी वही बात हो रहा है कि उन्होंने स्वयं को हर्ट किया, है ना। यहाँ पर यू हैव इन्वेंटेड दिस मशीन योरसेल्फ, तुमने ये मशीन खुद ही क्या किया है, बनाया है। यहाँ भी है मैं खुद ही पर्याप्त हूँ इस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, वहां भी वो उसी प्रकार का, अगर हिंदी में देखोगे तो उसी प्रकार का आता है, बट इंग्लिश में ये दोनों थोड़ा सा चेंजेस है। You cannot say same or something like that. You yourself will return my money. That means तुम खुद ही मेरे पैसा क्या करोगे, वापस करोगे, दूसरा कोई पैसा नहीं वापस करेगा, मेरे को दूसरे से चाहिए भी नहीं। तुम्हें जो है तुम ही क्या करोगे, मेरा पैसा ये करोगे, दोगे, ये नहीं कि नहीं उनसे ले लेना, मेरे से नहीं, मेरे फादर से ले लेना, नहीं, यू योरसेल्फ विल रिटर्न, तुम खुद ही मेरा पैसा क्या करोगे, रिटर्न करो, तुम खुद, है ना। इस प्रकार से वहां भी खुद, स्वयं, तुम स्वयं ही मेरा पैसा वापस करोगे, ये भी होता है। और एल्स यू कैन से थर्ड वाला देखिए, ही हिमसेल्फ नोज मी वेरी वेल, ही हिमसेल्फ नोज मी वेरी वेल, वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, जानता है, अच्छे तरीके से जानता है, या वो ही हिमसेल्फ नोज मी वेरी वेल, वो मेरे को खुद ही अच्छे तरीके से जानता, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है उसे। इस तरीके से दे देमसेल्फ विल हैव टू अर्न मनी, उन्हें खुद ही क्या करने हैं, पैसा कमाने हैं, दूसरा कोई उसको पैसा कमा करके नहीं देगा। दे देमसेल्फ, अब यहाँ पर देखोगे तो हमें ना माई सेल्फ की जरूरत है, ना योर सेल्फ की जरूरत है, ना हिमसेल्फ की जरूरत है, ना देमसेल्फ की जरूरत है। हम बोल सकते हैं आई एम इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू विल रिटर्न माई मनी, ये भी बोल सकते, यू विल रिटर्न माई मनी, तुम मेरा पैसा वापस करो। ही नोज मी वेरी वेल, वो मुझे अच्छे तरीके से जानता है। दे विल हैव टू अर्न मनी, उन्हें पैसा कमाना पड़ेगा, ये हो जाता है। तो हम बस यहाँ पे अगर ये सब ना बोले तब भी हमारा काम क्या हो जाता है, चल जाता है ना। अगर देम ना बोले, हिमसेल्फ ना बोले या माई सेल्फ ना बोले, तब भी अगर सेंटेंस देखोगे तो सेंटेंस क्या है आपका, क्लियर है, साफ है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, देम सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बस हम थोड़ा सा उसमें पावर या जान देने का काम करते हैं। कैसे, ठीक है, कैसे, जैसे अगर बोलते हैं आई माई सेल्फ, जैसे ही हम बोलते हैं आई माई सेल्फ, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा पतला करने का, आई माई सेल्फ, है ना, मैं खुद ही, तो यह थोड़ा सा आप खुद क्या हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। हाउ कम सो, आई माई सेल्फ या यू योर सेल्फ, ये हो जाता है आपका ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्फ, इस प्रकार से। तो ये था हमारा एम्फैथेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान दोगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन में, और अगर आपसे बोला जाए कि क्या है इन दोनों में डिफरेंसेस, तो हाउ विल यू फाइंड आउट। यहाँ भी योर सेल्फ का इस्तेमाल हो रहा है, वहां भी योर सेल्फ का इस्तेमाल हो रहा है। अगर देखोगे यहाँ पर माई सेल्फ, तो यहाँ भी आपका माई सेल्फ का इस्तेमाल हो रहा है। तो हाउ विल यू गेट द डिफरेंसेस, ठीक है। ये डिफरेंसेस देखने के लिए चलो हम एक मिनट हम लोग एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, ठीक है।
बहुत लोग को पता होगा, मैंने ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ाया हुआ था, मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें पता होगा। खैर, यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, चेक कीजिएगा। शी डिड इट हरसेल्फ विदाउट एनी गाइडेंस। She did it herself without any guidance. She herself did it in hurry without any guidance. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेम ही है, दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन एक सेंटेंस आपका रिफ्लेक्सिव है और दूसरा सेंटेंस आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वर्ब। ठीक है, ये डीड है आपका वर्ब। इसके बाद हम प्रोनाउन ढूंढेंगे, तो प्रोनाउन क्या हो गया, एक सी हो गया और हरसेल्फ हो गया, है ना। तो हरसेल्फ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल्फ वाला, तो यहाँ पर ये दोनों है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा रिफ्लेक्सिव या एम्फेथेटिक है, तो यहाँ पर यूजेस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में अंतर हम कैसे निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर हम उनके यूजेस के हिसाब से, कहाँ प्रयोग हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आपका जो हरसेल्फ है, एक मिनट पहले साफ कर लेना। फर्स्ट वाला सेंटेंस में जो आपका हरसेल्फ है, ठीक है, हरसेल्फ है, वो वर्ब के बाद है। ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, ये किनके बाद है, वर्ब के बाद है। तो वर्ब के बाद जो भी हरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ आता है वो रिफ्लेक्सिव में चला जाता है। लेकिन अगर आपका हरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्फ है ना, वो किसी सब्जेक्ट के बाद आता है ना, या फिर आप ये बोलो कि वर्ब के पहले, ये वर्ब है और ये वर्ब के पहले आ गया। ठीक है, तो अगर कभी भी हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, ये जो भी आपका है हरसेल्फ, ये दोनों अगर वर्ब के पहले आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। ध्यान रखें, अगर वर्ब के बाद आता है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करते हैं हम लोग अपने सेंटेंस में। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिए, यहाँ पे ये आपका हर्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आया हरसेल्फ है। ठीक है, यहाँ भी आपका हैव इन्वेंटेड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद ही जाकर के आपका क्या हो गया, योरसेल्फ आया हुआ है। यहाँ पर डू इट है या डू है, ये क्रिया है आपका, इसके बाद आकर के माई सेल्फ आया हुआ है। यहाँ पे सॉल्व्ड है, ये आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, इसके बाद ही आकर के इधर में क्या लगा है, आपका हिमसेल्फ लगा है, योरसेल्फ लगा, जो भी लगा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के बाद नहीं देखोगे। ठीक है, यही चीज अगर आप एम्फैथेटिक प्रोनाउन में आओगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका सब्जेक्ट के बाद ही आपका माई सेल्फ, यू के बाद योरसेल्फ, ही के बाद हिमसेल्फ, दे के बाद देमसेल्फ आ गया। ये सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। वर्ब तो इधर है, इज है आपका यहाँ पे वर्ब, हाँ, ठीक है। इसके बाद होगा यू रिटर्न हो गया वर्ब, नोज हो गया वर्ब, है ना, विल हैव टू अर्न हो गया तुम्हारा वर्ब, तो वर्ब इधर हो गए। तो वर्ब के पहले आ जाता, वर्ब के बाद जो आ गया वो रिफ्लेक्सिव, वर्ब के पहले जो आ गया वो एम्पैथेटिक, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक्स अपना सकते हैं। ठीक है, सीधा सा है, सब्जेक्ट के बाद आने वाला एम्पैथेटिक और वर्ब के बाद आने वाला रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से भी कर सकते हैं। वर्ब के बाद, है ना, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट के बाद आप एम्पैथेटिक कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा और इजी सा एक्सप्लेनेशन।